Hello and welcome to our special broadcast, Battle for Bihar. And we have a very, very interesting guest today who needs no introduction, no formal introduction at least. We are talking about none other than Shotgun, Shatrughan Sinha, who's now with us. We're talking about elections that are drawing nigh in the state. Mr. Shatrughan Sinha, would you agree in saying that there is a mess of a kind in the NDA? There is LJP versus JDU. Now there is a BJP versus LJP, and they're all together NDA because nobody has come out of the NDA just yet. If it was not my own home state, I would have said the picture is quite hodgepodge. And in Hindi, I would say, बहुत ही तिलस्मी मामला दिख रहा है. And to be very frank and honest, given under the circumstances, the first thing I would like to say कि election shouldn't have happened now. ये क्या बात है कि आप इलेक्शन बिहार में करा रहे हैं इस पैंडेमिक में और वहीं गुजरात में आपका अपना पंचायत से लेकर तालुका का जितना इलेक्शन है उसको कहा गया कि महामारी है, पैंडेमिक है, हम नहीं कर सकते हैं और वहां पे इसको बढ़ा दिया गया है और बिहार में भी कराया जा रहा है, knowing fully well the situation is not conducive at all. Politically तो conducive नहीं है, इसमें दो राय नहीं है. Only thing you see today in Bihar is anger, determination of the people, the commitment of the society to get rid of what has happened in last few months in Bihar, especially in last few months. And एक anger है कि करना है, लड़ना है, लेकिन लड़ने का जो atmosphere है वो कंड्यूसिव नहीं है. उसके अंदर एक डर भी है, एक भय भी है. Who all are going to come out for the election? कौन लोग आएंगे? बड़े लोग आएंगे, अपर कास्ट के लोग आएंगे या मासेस निकलेगी बाहर और किस हद तक निकलेगी, कहां तक निकलेगी? And last but not the least, this situation brings me to, I hope, wish and pray that it's not a repeat of the 2005 elections. Okay. जिस तरह से चल रहा है संकेत जी, ये हॉचपॉच सिचुएशन में कहीं हॉचपॉच रिजल्ट ना हो जाए. मुझे उसकी फिक्र नहीं है अपनी पार्टी की या ये इलेक्शन चुनाव के रिजल्ट्स की. फिक्र है कि बिहार का क्या होगा, कैसे हम और आगे बढ़ेंगे. आज पर कैपिटा इनकम तो छोड़ दीजिए, अभी बिहार में अभी युवा शक्ति जो है बेरोजगार है एंड ऑलमोस्ट 50%, 47% के करीब लोग बेरोजगार हैं. वहां की जो हालत है कई जगह तो बड़ी दयनीय हालत है. आपके एजुकेशन सिस्टम का कैसा चरमराना, आप हेल्थ सिस्टम को देख रहे हैं. एजुकेशन सिस्टम में तो यानी कह सकते हैं कि अभी तक बाकी बातें तो आपको पता ही है, लेकिन अभी भी बिहार में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे सके. उसके पैमाने, उसके मापदंड पे आज तक खरा नहीं उतरा है. तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपने जिस बात पे कही कि इस तरह से हॉटस्पॉट सिचुएशन है, वो उससे टूट रहा है, वो उससे छूट रहा है, वो उससे जुड़ रहा है, वो उससे बिछड़ रहा है. Now तरह तरह की बातें हो रही हैं. मुझे हम लोग तैयार जरूर हैं और हमारी पार्टी भी तैयार है और हमारे लोग भी तैयार हैं, लेकिन सिर्फ तैयारी के साथ साथ बाकी लोग जितने बिखरे हुए हैं, also the comments, कई लोग धराशायी हो रहे हैं, कई लोग धराशायी हो जाएंगे अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से. Also, you know, Mr. Sinha, the comments that are now being made, what would you have to say about the utterances of a few leaders of the Bharatiya Janata Party, particularly the Deputy Chief Minister, Sushil Modi in Bihar, and now even Prakash Javadekar, Union Minister, who use words like vote-cutting party, and this word was used in Hindi, that LJP is a vote-cutting party. Do you think a person who has just died just a few days ago, who was a tall leader, a minister in the Union Cabinet, reporting to, Narendra Modi, do these words behoove of a party which is still at present in affiliation? नहीं, आला नेता की ही नहीं, one of the most loved, one of the most respected, one of the most admired, one of the tallest figures of Indian politics
इन जनरल एंड बिहार इन पर्टिकुलर। रामविलास पासवान, हमारे दोस्त और हमारे सीनियर रामविलास पासवान जी की अभी मृत्यु हुई है। हमारी संवेदना उनके परिवार के प्रति है और उनकी पार्टी के प्रति भी है। और उस वक्त जब हमारी संवेदना उनकी पार्टी के प्रति है, उस वक्त हमारे पुरानी फैमिली के लोग यानी भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको मैंने शुरू में कहा था संकेत जी कि मैं आपकी भाषा की और भाषाओं की मर्यादा की मैं बहुत प्रशंसा करता हूं, लेकिन ये लोग जो है मर्यादा को तोड़कर अभी चुनाव की पहला भी फेज पूरा नहीं हुआ है और उसके होने बाकी है, उसके पहले इस तरह से भाषा का प्रयोग, इस तरह से कटुता, कड़वाहट, वो भी उतना प्यारे बच्चे के लिए, उसकी पार्टी के लिए। चिराग पासवान बहुत अच्छा लड़का है, युवा शक्ति का प्रतीक है, बहुत बेचारा अभी उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है और उसकी एक कोशिश है, भले सही है हम उसके साथ जाएं नहीं जाएं वो अलग बात है, लेकिन उसकी कोशिश है ये कि युवा बिहार के साथ साथ एक नया बिहार, एक प्रगतिशील बिहार, जैसे हम लोग चाहते हैं कि बिहार में प्रोग्रेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, पीस हो, प्राइड हो, ग्लोरी हो, उसी पेज पे वो भी दिख रहा है। उस बीच में एक तरफ तो आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री की तस्वीर आप नहीं लगा सकते। क्यों भाई? प्रधानमंत्री आपकी कोई जागीर है क्या? मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कह रहा हूं, प्रधानमंत्री तो पूरे देश का होता है। हमारे भी प्रधानमंत्री हमारे मित्र भी हैं, लेकिन समाज के मित्र भी हैं और देश के मुखिया हैं वो, और देश में सारी पार्टियां हैं। हम सब अगर वो तस्वीर लगाते हैं तो कौन सा पहाड़ टूटेगा? और उसका तस्वीर लगाते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं उनको जो वोट देगा वो आरजेडी, वो भी कहते हैं कि आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, और आरजेडी नहीं अपने जेडीयू के साथ, और वो कहते हैं बीजेपी का साथ देंगे। वो तो आज तक कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो हमारे जितने उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। कई बार साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे मित्रों का ये टैसिट सपोर्ट मिल रहा है उनको। ये बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हो रही है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं उसमें। मैं जेडीयू का नाम नहीं ले रहा, फिलहाल आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की तो भारतीय जनता पार्टी का ही नाम ले रहा हूं। वो हमारी भी पहली फैमिली रही है, पॉलिटिकल फैमिली। और मैं अपने बर्तनों को अच्छी तरह पहचानता हूं। अच्छा, बर्तन? उनके ट्रोल आर्मी को भी पहचानता हूं और ट्रोल आर्मी की हरकतों को भी पहचानता हूं, और साथ साथ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो इस तरह से बात कर रहे हैं, वो निंदनीय है, शर्मनाक है। और वो भी इस मौके पे, ठीक है चुनाव लड़ने का सबको अपना अधिकार है। अगर हमारे अपने चिराग पासवान कोशिशमंद हैं, फिक्रमंद हैं, प्रयत्नशील हैं, तो उन्हें करने देना चाहिए। रोज बयान बदलते, मैंने शुरू में कहा था तिलस्मी जादू दिखता है। ये एक जासूस हमीद और विनोद का की जासूसी दुनिया हुआ करती थी बहुत पहले बचपन में, बस वैसे ही है। रोज बयान बदलते हैं, रोज उनकी हरकतें बदलती हैं, रोज कड़वाहट आ जाती है ज्यादा। मैं नहीं समझता हूं ये ठीक है। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और सब अपनी अपनी नीति और स्ट्रेटेजी के आधार पर लड़े, कोई हद नहीं। All right, Shatrughan Sinha, always a pleasure talking to you. Thank you so much for speaking to NDTV.